Hello all my dear learners, Archana is here again with her next video for the class 10th, and as you can see on the screen, my today's video is on the poem number 2 titled Fire and Ice, written by a very famous poet named Robert Frost. I have already shared a video having the introduction of this very poem. Today I am going to take all the stanzas and the explanation along with the vocabulary in this very video. So let us take the stanzas one by one. Before I start the explanation, I just want to tell you that through this poem Fire and Ice, Robert Frost compares and contrasts two destructive forces, and those destructive forces are fire and ice. Here fire represents the desire and ice represents the hatred. So two negative traits, two negative qualities, they are being presented here by the poet. So now let us see the explanation. See the first line, it says, some say that the world will end in fire. Here there are two groups of people, and according to the one group, the world would end in fire. Means if the people have the negative quality like desire, they will soon meet their end. अगर मनुष्य के अंदर डिज़ायर है, मतलब कुछ चाहने की चाहत है, तो वो चाहत इतनी बढ़ जाती है कि उससे क्या होता है, उसका अंत हो जाता है. सो यहाँ पे फायर जो है उसको रिलेट किया गया है डिज़ायर के साथ. ठीक है, तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ग्रुप है उनके अकॉर्डिंग तो समडे द पीपल विल एंड, द पीपल विल मीट द एंड बिकॉज ऑफ देयर फीलिंग ऑफ वांटिंग a lot and a lot. ओके, तो वो जो बहुत ज़्यादा चाहने की जो चाहत है, जो इच्छा है, उसके कारण क्या होगा, लोगों का अंत हो जाएगा, इस दुनिया का अंत हो जाएगा. तो वो थी हमारी फायर. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड ग्रुप, सम से इन आइस, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड ग्रुप, द पीपल who have the feeling of hatred, here I stands for hatred. अगर नफ़रत की भावना है तो नफ़रत की भावना भी जो है, it also causes people to be rigid, unmoving and cold, and it leads to ultimately the destruction. So ये दो जो destructive forces है, fire और ice, ये दोनों किसी व्यक्ति को उसके अंत तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं. ओके, so we should not have these two negative traits, these two qualities. okay, now आगे अब पोएट अपने व्यू बताता है. थर्ड लाइन से पोएट खुद के व्यू बता रहा है. वो क्या कह रहा है कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. अब पोएट ये कहता है कि जो उसने जो कंपेयर किया फायर और आइस को, जब उसने कंपेयर किया पाया, he found destructive features, ice and fire, they are the two destructive features of human emotions. And he says that from what he is aware is about the fiery desire. तो कहते हैं ना, I have tasted of desire. तो जो फायरी जो है, जो जिस डिज़ायर को जो अपने आग से कंपेयर किया गया, जो विनाशकारी जो डिज़ायर है, जो किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा है, वो जो है it is more destructive. Then he says, I hold with those who favor fire. आगे वो क्या कहता है कि he would favor the ones who say that it would be the fire, and by saying so he brings about the idea that the human beings, they let these two emotions rule them. ये जो दो emotions हैं हमारे, desire और hatred, ये दोनों के दोनों जो है हमारे ऊपर रूल करते हैं. ठीक है, और इन दोनों के कारण जो होता है, हमारा जो फ्यूचर जो है, हमारा जो अंत जो है, वो बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है. ठीक है, these two emotions, these two destructive features, they
always lead to a destructive result. ओके, सो कॉन्सिक्वेंस इनका बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है। तो इस स्टेंजा के थ्रू पोएट हमें यही बताना चाहता है कि फायर और आइस जो है किसको रिप्रेजेंट करें इस पोएम में और कैसे वो हमारा विनाश कर सकते हैं। ओके, आई हैव शेयर्ड द वोकैबुलरी हियर ऑल्सो। डिज़ायर मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ wanting to have something or wishing to have something to happen, that is desire। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा होती है उसको हम डिज़ायर कहते हैं। एंड फेवर हेयर मीन्स अप्रूवल और सपोर्ट। ओके, जैसे यहाँ पे ना हु फेवर, हु सपोर्ट फायर, जो सपोर्ट करते हैं फायर को, यहाँ पे जो पोएट ने यूज़ किया था फेवर वर्ड। तो ये था आपका स्टेंजा नंबर 1। चलो अब स्टेंजा नंबर 2 देखते हैं। स्टेंजा नंबर 2 जो है वो क्या कहता है। But if I had to perish twice, I think I know enough of hate. Then by not waiving of the first option, पहले ऑप्शन को छोड़ते हुए ना छोड़ते हुए है कि फायर जो विनाशकारी है, he considers that, the poet considers that the world has to expire twice. perish का मतलब to die, okay, या बर्बाद होना या मृत्यु होना। तो अगर दुनिया ने जो है बर्बाद होना है, इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू डाई, और अगर 2 बार डन करना है, देन आइस वुड इक्वली बी कॉम्पिटिटेंट। वो कहते हैं आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। हेट यहाँ पे आइस है जो आपको यहाँ पे शो कर रखा है। तो वो ये कहता है कि जब अगर दुनिया का अंत होना है, 2 बार होना है, तो आइस वुड इक्वली बी कॉम्पिटिटेंट टू द फायर इन एंडिंग इट। उतना ही रोल जो है आइस भी प्ले करेगी जैसे कि फायर करती है किसी का अंत करने में। ओके, ही ब्रिंग्स अबाउट अ कंट्रास्ट बिटवीन आइस एंड हेट्रेड। आगे वो कहता है टू से दैट हर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मीन्स सफिशियंट। तो विनाश करने के लिए जो है आइस भी उतनी ही ज़्यादा सफिशियंट है। ठीक है, मतलब द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ insensitivity and hatred has the same potential for inner destruction. Okay, so हालांकि आइस जो है it is a slow and steady process, but it has the same effect that the fire or desire has on us. So if we are given an option between fire and ice, ice would be just as good as fire to destroy the world. ओके, सो ये था आपका स्टेंजा नंबर 2। तो चलो एक बार दोबारा से थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ। आपकी ये पोएम हमारी किसके बारे में थी। ये पोएम जो थी हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपेयर किया, कंट्रास्ट किया 2 विनाशकारी तत्वों को, और वो कौन से हैं, फायर और आइस। फायर यहाँ पे हमारा डिज़ायर के लिए यूज़ किया गया है और आइस हमारा हेट्रेड के लिए। सो इन द फर्स्ट 2 lines of the poem, the 2 options for the end of the world are given, and they, according to the people, the 2 group of the people, the world would either end by fire or by ice. Then further the poet supports that who believes that the fire would cause the end of universe, he relates fire to the desire. He views that desire is something that consumes and destroys. Desire एक ऐसी भावना है, एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो कि कंज्यूम करता और हमें डिस्ट्रॉय कर देता है। ही कंपेयर्स आइस टू हेट, फिर कंपेयर करता है आइस को हेट से। एंड हेट इज़ ऑल समथिंग दैट कॉजेज पीपल टू बी रिजिड। जैसे बर्फ़ रिजिड होती है बिल्कुल, वैसे अगर व्यक्ति के अंदर नफ़रत की भावना तो वो भी रिजिड हो जाता है, और रिजिड है तो वो अनमूविंग हो जाता है। ठीक है, आइस ऑल्सो हैज़ अ टेंडेंसी टू कॉज हार्म टू अ पर्सन। ओके, एंड इन द एंड पोएट हमें ये कहना चाहता है दैट द 2 destructive forces आर इक्वली पावरफुल, जैसे कि आपके स्टेंजा नंबर 2 में दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग, पोएट के अकॉर्डिंग दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं। फायर जिसको हम पैशन या वांट या डिज़ायर भी कह देते हैं, कंज्यूम्स एंड डिस्ट्रॉयज क्विकली, लिविंग एशेज इन इट्स वेक। एंड आइस जो कि हेट्रेड है वो भी इक्वली डिस्ट्रॉयज, लेकिन
but it destroys slowly. Okay, so here Frost conceives the end of the world caused by people becoming too rigid, unmoving, and greedy. He advises us through the poem to shun the hatred, avarice, and the coldness. इस कविता के माध्यम से पोएट हमें ये सलाह देता है कि हमें ये हेट्रेड की भावना, ये हमें एवरेस्ट की भावना, जो ग्रीड की है, जो डिज़ायर की है, वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए. हमें अपने आप को, हमारे अंदर इन भावना को अपने अंदर नहीं समाने देना चाहिए. ठीक है, तो बहुत ही सुंदर मैसेज था इस पोएम के थ्रू जो पोएट हमें दे रहा है. आई होप अब आपको ये पोएम जो समझ में आ गई होगी. वोकैबलरी सारी मैंने शेयर कर रखी है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं था इसके अंदर. ओके, सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. आई होप दिस video will be useful to you all and it will help you to score good in your exams. And if you like the video, then do like and share it. I will be back soon with my next video for the class 10. And so do subscribe the channel and don't forget to press the bell icon, okay, so that you get the notification as soon as I upload my video on my channel. Okay, so it's goodbye from me. Stay safe and keep learning.